Hi everyone, how are you all? I hope you are all doing so great. So today's reading is about what is the future with this person in your mind. और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, योर रिलेशन, योर क्रश, योर फैमिली मेम्बर, वॉट एवर इट इज़. सो what is the future is going to give you, the surprises, the life events, the lessons, the blessings, whatever it is in future with this person. We are going to study about it, and this reading is going to be a pile selection. So here are pile number 1 and pile number 2. So I'll give you one timestamp, or I'll show you the screenshot. You can take a pause, take a deep breath, and select your pile. So here are the cards. You can take a pause, take a deep breath, and select your pile. Pile number 1 and pile number 2. Okay, so let's start with the reading of pile number 1. So how the future is going to look like for pile number 1 with this person in their mind. Some of you already know how it's going to be. Maybe you are watching this for a person who you already know very closely, या तो फिर ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है या आपकी ऐसा कोई रिलेशन है जो आप ऑलरेडी टाई हो चुके हो और आपको ऑलरेडी पता है फ्यूचर कैसा होने वाला है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट पर्सन. So even though there will be a detailed reading, but the first thing is that you already know some kind of stuff about that person. All right. I feel you met this person when there was a tough time going on in your life. Uh, mm, Maybe some heartbreak you were going through, या फिर कुछ struggles you were having with your career, jobs. आपका ऐसा कुछ एक सिनारियो हुआ था इस पर्सन को मिलते वक्त कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा था लाइफ में, या तो फिर यू वेर सैड फॉर सम रीज़न, और यू वेर डिप्रेस्ड, यू डी नॉट फील लाइक मोटिवेटेड. कुछ भी करने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं आते थे, मन नहीं करता था. यू आर सम काइंड ऑफ इन अ डार्क फेज इन योर लाइफ, एंड दैट टाइम यू मेट दिस पर्सन एंड यू वर ऑल अलोन. यू फेल्ट लोनली. आपके सराउंडिंग में हो सकता है लोग रहते हुए भी यू फेल्ट अलोन. भीड़ में आप अकेला महसूस करते थे, एंड यू कुडंट शेयर योर थॉट्स, योर माइंड to anyone, because nobody could understand to that depth of your mind. और जिससे भी बात होता था बस हल्के हल्के ऊपर ऊपर से ऑन सरफेस लेवल से आपका बात होता था, एंड यू वर वेरी काइंड ऑफ a sad, cornered person at that time, and this person came into your life at that time. Okay, so you somewhat already know about this person very perfectly. And I don't feel like I should explain more about this person to you. Like, and this person has this qualities. You already know this person's qualities. What are this? Okay, you already know about it, and that's why this reading is specifically that what is the future. I want to know what is the future. Okay, so. I think you are in a very beginning level of relationship at this moment. हो सकता है आप लोगों की बातें शुरू हो रही है, या if you are in relation बहुत टाइम नहीं हुआ है, you are knowing each other, and quite finely everything going on, and you are kind of very happy. I won't say very happy, but आपका जो डार्क फेस था वहाँ से निकल चुके हो. आपको उन्होंने बहुत कुछ नया नया चीज़ें सिखाए हैं रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग स्किल्स, रिगार्डिंग करियर, वट एवर इट इज़. आपको उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें, नए नए चीज़ें आपके लाइफ में डाल के दिए हैं. सो यू आर समहाउ left your that dark phase behind, and you are very excited to explore this new life. वो आपको जो जो एक
वो आपको एक नया दुनिया दिखा रहे हैं, जो हो सकता है आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये लाइफ भी मैं एक्सप्लोर करूँगी, ये दुनिया भी मैं एक्सप्लोर करूँगी, बट यू आर एक्सप्लोरिंग दिस अनदर वर्ल्ड विद दिस पर्सन, ओके, एंड यू आर लर्निंग न्यू स्टफ विद दिस पर्सन। हो सकता है आप नए जगह जा रहे हो, कुछ नए नए बातें सीख रहे हो उनसे, उनके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन होते हैं जो आपको भी बड़ा मज़ा आता है कि ऐसे टॉपिक्स तो मैं कभी किसी ना डिस्कस करी हूँ, और या तो फिर ऐसे थॉट्स मेरे मन में हमेशा था बट आई हैड नो बडी टू टॉक अबाउट ओपनली। सो आपको इस इंसान से मुझे लगता है कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यू वाइब ऑन अ वेरी इक्वल लेवल एंड यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग फ्रॉम दैट पर्सन। हो सकता है आप कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, करियर रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, आपका हो सकता है पर्सपेक्टिव्स कुछ कोई चीज़ों को लेके कुछ और था, आप बहुत चीज़ें धीरे धीरे बदल के कुछ और हो रहा है, एंड इट्स लाइक यू आर नाउ लर्निंग अ न्यू लेसन अबाउट योर लाइफ, कि पिछले चैप्टर्स में जो भी था वो सिलेबस अब ख़त्म हो चुका है, अब एक नया सिलेबस शुरू हो रहा है जहाँ पे आपको टॉपिक्स काफ़ी नया लग रहा है और कॉन्सेप्ट काफ़ी आपको अच्छा लग रहा है, ओके, एंड somewhat kind of maybe you were kind of scared with this relation somewhere। हो सकता है आपका ये पास्ट ट्रॉमा हो या पास्ट में आपके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि अच्छा तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही अच्छा कुछ होता है मुझे थोड़ा डर लगता है ये अच्छा इतना हो रहा है कुछ गलत ना हो जाए, आपके मन में हो सकता है ऐसा कुछ रहता होगा, एंड यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ अफ्रेडफुल अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस रिलेशन और अबाउट दिस पर्सन, कि इतना कुछ सही चल रहा है, आई समवेयर काइंड ऑफ अफ्रेड कि कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए, या फिर आप पिछले कुछ इंसिडेंट्स का कुछ ट्रॉमा अभी भी लेके घूम रहे हो जिसके लिए आप फुल्ली इस कनेक्शन को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और यू आर स्टिल कीपिंग योर सेल्फ इन अ कंटेनर, कि मुझे इतना ही महसूस करनी है, मुझे इतना ही खुलना है, मैं इतना ही एक्सप्लोर करूँगी, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती। आप खुद को ना थोड़ा बहुत रोक के रखे हुए हैं, जितना आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए था, जितना आपको और एक्सपांड होना चाहिए था इस कनेक्शन में, आप उतना एक्सपांड खुद को होने नहीं दे रहे हो, बिकॉज यू होल्ड सम ग्रीफ्स और सम रिग्रेट्स फ्रॉम योर पास्ट, ओके, एंड that's why though you are learning so many things with this person, you somewhere uh, कभी आपका होता है कि बहुत ज़्यादा आपको लगता है वाओ दिस इज़ सो ग्रेट, एंड जैसे ये थॉट आता है तुरंत आप सोचते हो कि बट बस इतना ही खुश रहना चाहती हूँ, इससे और गलत कुछ ना हो जाए, इतना खुश रह रही हूँ कुछ गलत ना हो जाए, अब वो थॉट भी साथ साइड बाय साइड रखते हो। आई वोंट से कम्प्लीटली एनी टाइम बस हाँ बहुत बहुत एक्साइटेड बहुत खुश रहूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इंसानों को हमेशा केयरफुल हमेशा कॉशियस होनी चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग कि आपकी जो पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस है वहाँ से आप ऐसे हो चुके हो कि मतलब even though everything is going great you always look for if something's wrong here, which is a good thing, but जो आप जो जजमेंट्स रखते हो अपने पास कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत होने वाला है क्या, ये थॉट को अभी आप ओवर पावर होने मत दिया करो, okay, because I can see you sometimes this thought overpowers your good times, good moments, good talks, okay, so take care about that. And in near future things are going to change very rapidly, maybe your relation will bloom वेरी रैपिडली टू अ सीरियस वन, और हो सकता है बहुत कम टाइम पे ही आपको ऐसा महसूस होने लगे कि ये इंसान को ना मैं बरसों से जानती हूँ, बहुत ज़माने से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज हो जाए एंड यू आर लाइक इतना जल्दी चीज़ें बदल रहे हैं, ये अच्छा तो है ना, आप खुद को ये वो चीज़ डाउट करने वाले हो कि इतना जल्दी क्यों बदल रहा है चीज़ें, सही तो है ना, आप ये डाउट में रहोगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस रिलेशन विल ब्लूम, दिस रिलेशन विल गो हायर वेरी फास्ट, बहुत जल्दी रिलेशन शेप लेने वाला है, बहुत जल्दी रिलेशन लेवल्स क्रॉस करने वाले हैं, ओके, एंड नाउ इफ़ यू आस्क बिकॉज आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चन कि ठीक है रिलेशन आगे बढ़ेंगे, लेवल अप होंगे, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे, बट इज़ इट ऑन पॉजिटिव साइड और इज़ इट ऑन नेगेटिव साइड, सो लेट्स
go deeper into it. Okay, so I need some more cards, at least 1 or 2, कि ये जो relation bloom होने वाला है, relation will go on a positive side or on a negative side. There are some hardships definitely will be there, but team as a team अगर आप लोग काम करोगे, any hardship will become enjoyment. Okay. आई एम गेटिंग यहाँ टू एनर्जी हियर, हो सकता है आप दोनों की एनर्जी हो, एंड टेक इट एज इट रेजोनेट्स. इसमें से एक कैरेक्टर आपकी है और एक कैरेक्टर द उन पर्सन की है जिनके बारे में आप सोच रहे हो. ओके, एज आई हैव सेड कि मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है, एज आई हैव रेड प्रीवियसली, कि आप ना नेगेटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. ये तो है कनेक्शन पे, लेकिन ये चीज़ की कमी है, आप वो चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो मे बी, और यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, मे बी इमोशनली, मे बी फाइनेंशियली, मे बी फिजिकली, क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हो नेगेटिव चीज़ों पे, कि रिलेशन में ये चीज़ें तो अच्छे तो है, ठीक है, बढ़िया है, नाइस, बट ये चीज़ें मुझे इतना अभी तक इतना बढ़िया नहीं लग रहा, या इतना बढ़िया होना चाहिए था, उतना बढ़िया मुझे नहीं लग रहा. तो समव्हाट दैट काइंड ऑफ थॉट्स है, जैसा लग रहा है मुझे. एंड मे बी यू आर हर्ट फ्रॉम योर पास्ट, जो भी आपके इंसिडेंट्स हुए हैं, या जो भी आपका वो फेज रहा है, जो डार्क फेज रहा है, वहाँ से आप कहीं ना कहीं बहुत जख्म अभी भी लेके घूम रहे हो, एंड दैट्स वाई यू आर मेकिंग दिस रिलेशन लिटिल बिट हैवी. ओके, जितना एन्जॉयबल होना चाहिए था, भले मौसम जैसा भी हो, भले मौसम रूखा हो, सूखा हो, बारिश हो, धूप हो, मज़ा उठाना आना चाहिए. सो समवेयर दैट स्पेसिफिक फैक्टर इज मिसिंग इन दिस कनेक्शन, कि हर मौसम का आप लोग मज़ा नहीं उठा रहे हो. एंड व्हेन आई से मौसम, इट डज नॉट लिटरली मीन मौसम, इट्स अबाउट द कनेक्शन. दैट वहाँ पे जो जो भी सिचुएशंस आते हैं, कभी लड़ाई हो रही है, कभी झगड़ा हो रहा है, कभी प्यार हो रहा है, कभी रोमांस हो रहा है, कभी बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप लोग, जो भी टाइप का आप लोगों के बीच है, एज एवर वट एवर द कनेक्शन यू वर लुकिंग फॉर दिस रिलेशन रीडिंग, सो अकॉर्डिंग टू दैट आप उस रिलेशन का, उस कनेक्शन का आप फुल मज़ा नहीं उठा रहे हो. ओके, एंड ओनली दैट फैक्टर आई एम फीलिंग काइंड ऑफ मिसिंग इन योर कनेक्शन. ओके, एंड one of you is being very like keeping thoughts within themselves, not speaking out loud. But yeah, even though you are not speaking, there are vibes in both of you, there are energy that you both of you can feel from each other. So only because that energy is so mutual between you two, that's why without even क्लियर कम्युनिकेशन चीज़ें अभी बेहतर चल रही है, बढ़िया चल रही है. बट डो नॉट कीप क्वाइट फॉर लॉन्ग. ओके, इतना भी क्वाइट मत रहो. आई गारंटी यू दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स यू टू अ वेरी डेप्थ. ओके, अगर आप नहीं भी बता रहे हो, दैट पर्सन कैन सेंस यू, दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू, दैट पर्सन कैन सी व्हाट यू आर फीलिंग. सो वहाँ तक ठीक है, बट समटाइम्स इट्स योर कर्टेसी कि कुछ चीज़ें बताना चाहिए, कुछ चीज़ें क्लियर अप करना चाहिए, कुछ चीज़ें ओपन अप, स्ट्रेट अप बोलना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन, दैट पर्सन ऑल्सो कैरी सम एक्सपेक्टेशंस, बट दैट पर्सन इज़ वेरी मच मैच्योर आई फील, एंड दैट्स व्हाई अगर आप नहीं भी बोलोगे, वो सुन लेते हैं, उनको सुनाई देती है, आप नहीं भी बोलोगे. बट समटाइम्स इट्स योर कर्टेसी कि मतलब हमेशा मैं वही टेस्ट क्यों दे रही हूँ रिलेशन में, कभी तो मैं थोड़ा बदलूँ उस इंसान के लिए. वो इंसान जब इतना कुछ मेरे लिए है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई अकाउंटेबिलिटी कि मैं भी उस इंसान को कुछ आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, आउट ऑफ बॉक्स कुछ तो दूँ. सो इट इज़ गाइडेड कि इतना चुप मत बैठो, इतना क्वाइट मत रहो, स्पीक अप, टॉक अ लिटिल बिट, कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़ाओ, एंड दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स कि यू आर बीइंग गार्डेड, यू ऑलवेज गार्ड योर सेल्फ. आप बात करते हो, लेकिन साइड बाय साइड आपके मन में जो डाउट भी रहता है उस इंसान पे, वो इंसान को पता चलता है कि आप भले उन पे डाउट नहीं कर रहे हो, बट यू हैव द फियर फ्रॉम योर पास्ट कि मतलब सही में ऐसा होगा ना. दैट पर्सन रीअश्योर्स यू कि मतलब हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, तुम देखना. और दैट एंड देन
वो इंसान याद रखता है कि आपको उस चीज़ का डर है कि होगा या नहीं होगा, आप पूछे थे, वो बात उनको याद रहता है, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन कमिट्स टू देयर वर्ड्स, कि मैं उनको ये कमिट किया हूँ कि हाँ हाँ, इस चीज़ ऐसे ही होगा. सो दैट पर्सन ट्राइज देयर बेस्ट टू make that happen just the way you asked. Okay, though that's why I feel that person is giving a lot in this relation, and you definitely want this person, you definitely having a peaceful mind with this connection. Just thing is that you are being too quiet too quiet, and talk up, ओपन अप, लिटिल बिट ओपन अप. और अगर आप ओपन अप होंगे ना तो रिलेशन बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी ब्लूम होंगे. एंड आई हैव द सेंस दैट दैट पर्सन विल चेंज यू सो दैट यू कैन स्पीक अप योर माइंड, यू कैन स्पीक योर माइंड, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल अराउंड दैट पर्सन. वो पर्सन वो चीज़ ही चाहता है कि यार मेरे से छुपाओ मत, मेरे से डरो मत, मेरे से दूर मत रहो यार प्लीज़. मतलब हम दोनों एक टीम में है. वी बोथ आर नॉट different individuals, we are individually a team. भले दो लोग में बटे हुए हैं, but we are one. वो that person wants that kind of energy in your connection. Okay, and you are giving a lot in this connection. I won't say you are not giving, and that's why that person is not leaving you, or that person is thinking of कीपिंग द कनेक्शन विथ यू इन द फ्यूचर. क्योंकि उनको भी आपकी एफर्ट्स दिखते हैं. भले आप दिखा नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, बट दैट पर्सन कैन सेंस योर एनर्जी कि आप रखना चाहते हो उस इंसान को उनकी आपके लाइफ में. एंड दैट थिंग मेक्स यू लुक वेरी इनोसेंट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन कि बच्चा है वो यार, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, मैं उसको दुख नहीं दे सकता. ऐसा उनका एक आपको लेके एक माइंडसेट है. This relation, the feeling I'm getting from this reading is very calm, very peaceful, very loving energy. There is not kind of something lustful, physical attraction only. I'm not seeing that. I am seeing two people from two different worlds are made for each other, some kind of energy. Okay, and one of you is dreaming समथिंग गुड फॉर फ्यूचर. अभी अगर अगर आपकी लाइफ बहुत स्टेल है, अभी अगर आपकी लाइफ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट है, यू आर ड्रीमिंग अ वेरी कलरफुल लाइफ इन योर फ्यूचर. एंड यू आर हो सकता है ये आप सोच रहे हो या वो सोच रहे हो सकता है आप दोनों ही सोच रहे हो, बट या वन ऑफ यू इज थिंकिंग अबाउट अ वेरी कमिटेड फ्यूचर इन आप वेरी सुन. ओके, हो सकता है कमिटमेंट प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल, एंगेजमेंट प्रपोजल, या व्हाट आवर फ्यूचर विल लुक लाइक इफ वी बोथ स्टे टुगेदर. इस टाइप का ख्याल आप लोगों में से किसी के मन में तो चल रहा है. ओके, एंड there are some kind of a little bit of confusion I am seeing. Maybe वो confusion फिर से I feel आपके साइड से ही हो रहा होगा. कि जैसे एज आई हैव सेड कि अच्छा तो हो रहा है, सो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भी तो थोड़ा बहुत मुझे सही नहीं लग रहा है, क्या होगा. ऐसा दो थॉट में हो सकता है आप थोड़ा जगलिंग कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड विच इज़ अ गुड थिंग. आप खुद को गार्ड रख लो. एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आप बहुत गार्डेड हो. आप मतलब एनी टाइम केयरफुल रहते हो, आप एनी टाइम कोशिश रहते हो कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा जो हो रहा है वो सही हो रहा है, कहीं मैं फंस ना जाऊं. ऐसा आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कॉन्स्टेंटली. ओके, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं. बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है. कीप योर डाउट्स, इट विल इवेंचुअली अनफोल्ड टू यू. और आपकी डाउट्स अपने आप क्लियर हो भी जाएंगे. उसको लेकर आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये मेरे मन में डाउट है, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. जस्ट कीप दैट डाउट इन योर माइंड. आपको अपने आप वो चीज़ें का जवाब अपने आप खुल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा. ओके, सो दिस वाज अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1. so do let me know in comments, have you resonated with this? Also, if you want personal readings, you can contact me on my email id. Also, you can contact me on Instagram. Okay, so see you in my next video. Till then, take care, bye bye, and thank you. Hello, pile number 2. I hope you are doing well. So, you have chosen this pile because you want to know what is the future is going to be with this person in your mind. So, let's shuffle the cards.
आई सी सम रिग्रेट्स. हो सकता है ये आपके मन में है या फिर उन पर्सन के बारे में, बट आई फील मोस्ट ऑफ योर एनर्जी कि यू हैव सम रिग्रेट्स फ्रॉम योर पास्ट. बट क्यों है, कैसा है, देखते हैं. मे बी यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि गलती किसकी थी, क्यों हुआ था, एंड यू आर अपफ्रंट टू clear those mistakes up. Okay, all right. mm, if I look into your past, there are some major events have happened. I would say a failed relation, where you and your previous partner were pulled apart from each other, but you two somehow managed to build a very good relation. बट कहीं ना कहीं वो रिलेशन मुझे लगता है बिखरने को हो गया जैसा मुझे लग रहा है. एंड मे बी यू आर सीइंग दिस रीडिंग फॉर दैट पर्सन. मुझे लगता है ये दिस पर्सन इज समवन विथ हुम यू आर मे बी इन नॉट कॉन्टेक्ट विथ राइट नाउ, या फिर रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर कुछ अनबन हुई है, थोड़ा फाइट्स, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा क्रॉस ओपिनियंस हुए हैं जिसके वजह से थोड़ा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे हो. एंड यू आर सीम वेरी हर्ट फ्रॉम दैट इंसिडेंट, फ्रॉम दिस नो कॉन्टेक्ट जोन. एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप उसी पर्सन के लिए देख रहे हो कि ये पर्सन के साथ तो मेरा अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या जो अभी हार्डशिप्स जा रहे हैं, तो इस पर्सन के साथ मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है. यू आर सम काइंड ऑफ, यू आर सीइंग दैट काइंड ऑफ reading here. Okay, so as I am seeing, there are some heartbreak or some regrets, some griefs are going on, and for you that person means the world to you. आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर that person loves you a lot, that you feel like not able to breathe without this person, because रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था, काफ़ी पुराना रिलेशन है, बहुत कुछ ओपिनियंस, बहुत कुछ लाइफ इवेंट्स आप लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हो, एंड यू डोंट फील लाइक कि लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आएंगे तो मैं इतना घुल मिल जाऊंगी. मुझे नहीं लगता है. ये पर्सन अगर नहीं रहेगा, पता नहीं मैं इसके बाद कोई दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो भी पाऊंगी. आई डाउट माई सेल्फ. मुझे तो मन ही नहीं करता दूसरे इंसान के बारे में सोचने. ऐसा आपका कुछ ख्याल है. एंड you're too sad, you're too depressed, you're too feeling lonely for this connection कि कुछ हो गया है, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है. And I think you both are equally involved in this relation. ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कोई एक जने कम एफर्ट्स में थे, कोई एक जने का ज़्यादा एफर्ट्स था. यू बोथ वर इक्वली गिविंग इन दिस रिलेशन, एंड यू बोथ do not feel right about whatever have happened recently. अगर कुछ फाइट्स हुई है, यू बोथ आर वेरी रिग्रेटफुल कि ये नहीं होना था, किसके साथ ही मैंने लड़ाई कर लिया, वो तो मेरे अपने हैं. और आप भी से सोच रहे हो कि वो मेरे तो अपने ही हैं, मैं क्यों कर लिया. और ये फाइट होके, ये जो हम ओपिनियंस जो एक्सचेंज किए, इतना हॉट डिबेट जो चला, उससे हमको क्या मिला, बस दूरियां ही मिल रही है, हमारा डिस्टेंस ही क्रिएट हो रही है, यहाँ से कुछ गेन तो हो नहीं रहा. सो यू ऑलरेडी हैविंग दिस थॉट, एंड दिस डायनामिक इज एक्चुअली वेरी गुड डायनामिक. क्यों बता रही हूँ, रिलेशन की शुरुआत ऐसा नहीं कि 7 साल पुराना रिलेशन है इसलिए बहुत पुराना रिलेशन है, ऐसा नहीं है. कभी भी क्या होता है, बाय टाइम हम ऑलरेडी एक एक पर्सन एज एन इंडिविजुअल हम ग्रो होते हैं. सो बाय टाइम वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, एंड समटाइम्स
वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट, एंड जब ऐसा कुछ मेजर इवेंट हो जाता है उसके बाद रियलाइज़ होता है कि मैं क्या खोने जा रहा हूँ, ये कितना कीमती था मेरे लिए। हो सकता है ये फाइट, ये डिस्टेंस क्रिएट नहीं होता तो हो सकता है आप दोनों को कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना परफेक्ट हो, कितना राइट पर्सन हो एक दूसरे के लिए। सो ये जो आप लोगों के बीच जो ये डिस्टेंस बनी है, दिस डिस्टेंस इज ए लेसन टू बोथ ऑफ यू कि देखो, खुद को महसूस करो अब कैसा लग रहा है विद दैट पर्सन। मे बी यू फेल्ट लाइक अरे ये तो ठीक है, बढ़िया है, एंड मे बी यू हैव टेकन ग्रांटेड दिस कनेक्शन, दिस रिलेशन फॉर अ वाइल। जब ये अभी डिस्टेंस क्रिएट हुआ जब ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ तब आप लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि कितना कुछ खो जाएगा अगर ये कनेक्शन खो गया। सो दिस डिस्टेंस, दिस फाइट जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, इट इज़ अ सब काइंड ऑफ लेसन टू बोथ ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस रिलेशन कि आप किसके साथ हो। ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं रहेगा तो आपको कैसा लगने वाला है, ये आपको एक सिनारियो दिया जा रहा है। एंड इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक्सप्रेस करने वाले हो कि तुम्हारे बिना मुझे ऐसा ऐसा एहसास हुआ है, मुझे ऐसा लगा। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। ब्रेक के बाद देयर वाज अ मूवी, ब्रेक के बाद, सो देयर दे हैड दैट सेम कॉन्सेप्ट कि पहले रिलेशन में रहते हैं, फिर आई एम फॉरगेटिंग लिटिल बिट, बीच में उन लोग का ब्रेकअप होता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली इट वाज अ म्यूचुअल ब्रेकअप और ऑल ऑफ अ सडन ड्यूरिंग ड्यू टू फाइट दे हैड दैट ब्रेकअप। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आफ्टर दैट वो लोग फिर से बात करना शुरू करते हैं एंड देन देयर रिलेशन स्ट्रेंथन्स देन बिफोर। सो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले आप रिलेशन में हो, ग्रांटेड ले रहे हो, प्यार में हो कि, लेकिन खुद को रियलाइज़ नहीं होता है कि हम दोनों बहुत सही है एक दूसरे के लिए, हम दोनों बहुत कमिटेड है एक दूसरे के लिए, वो रियलाइज़ नहीं होता है। एक बार डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उसके बाद वाले फेज में रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट था, बस मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। और ये चीज़ सिर्फ एक जने को नहीं, दोनों जने को रियलाइज़ होता है वो चीज़। एंड देन यू मीट अप, यू क्लियर आउट ऑल योर प्रॉब्लम एंड सोल्व आउट। उसके बाद रिलेशन और स्ट्रेंथन हो जाता है, स्ट्रॉन्गर बन जाता है, और उसके बाद कोई तोड़ ही नहीं सकता कनेक्शन। सो आई एम गेटिंग दैट वाइब, ओके, एंड दैट्स वाई नियर फ्यूचर दिस सिचुएशन इज कमिंग वेरी सुन कि दोनों को रियलाइज ऑलरेडी हो रही है, अभी ऑलरेडी दोनों को रियलाइज हो रही है। बस आप लोग अभी बता नहीं रहे हो। सम काइंड ऑफ मे बी अ लिटिल बिट ऑफ ईगो इज स्टिल देयर कि मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन हाँ आप लोग ये भी सरेंडर कर चुके हो कि नहीं हो पाएगा, ये डिस्टेंस के साथ नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। ये ऑलरेडी रियलाइजेशन आप लोगों की आ चुकी है, एंड दैट्स वाई यू आर डिसाइडिंग, यू बोथ आर आई थिंक इक्वली सोच रहे हो सकता है अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हो, बट वेरी सुन यू आर गोइंग टू कम टू ईच अदर कि मतलब यार मुझे कुछ बताना था, वो सामने वाला भी हाँ हाँ बोल, मैं भी बताऊंगा कुछ। सो ये कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आसपास आने वाले, बहुत जल्दी आप लोग कम्युनिकेट करने वाले हो। अभी के लिए बस आप दोनों बहुत इमोशनली फील कर रहे, यू आर टेलीपैथिकली टॉकिंग टू ईच अदर। उनको नींद नहीं आ रहा, आपको भी नींद नहीं आ रहा, आपको पता है कि उनको नींद नहीं आ रहा, ओके, आई नो यू नो दैट आई नो ऐसा एक सिचुएशन है। सो बहुत जल्दी ये सिचुएशन ब्रेक होने वाला है एंड यू विल कम टू ईच अदर कि यार सुनो यार ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, लेट्स नॉट डू दिस, ये जो किए हमने एक दूसरे के साथ, लेट्स नॉट डू दिस। सो आई एम गेटिंग दिस अ वेरी काइंड ऑफ म्यूचुअल काइंड ऑफ एनर्जी। आप दोनों हो सकते हो उम्र में ऑलमोस्ट सेम एज के और हो सकता है दोनों की एज ऑलमोस्ट आई मीन दोनों की हाइट एज कुछ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, या फिर आप दोनों सेम क्लासेस में हो, सेम बैच में हो, सेम ऑफिस में हो, आप लोगों का कुछ तो एक एनवायरनमेंट है जो सेम है। Okay, so you are mostly kind of friends, you are firstly very good friends and then you both are lovers, and ये जो distance create है, distance के बाद आप लोगों की वो friend एंड लवर ये और स्ट्रेंथन होने वाला है कि फ्रेंडशिप और बढ़ेगी, लव और बढ़ेगा, एक बड़े ही बडी टाइप लव टाइप की कनेक्शन है जिसके दैट्स वाई when this person is missing in your life you are not only missing love, you are missing your friend and your love at the same time. So that person almost is like your family and you are also kind of a family to that person. You both are very mutual to each other, you both are very equally connected to each other. यहाँ पे कोई height
ज़्यादा कम नहीं है कि एक से ज़्यादा एफर्ट्स एक से कम एफर्ट्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों इक्वली इन्वेस्टेड। ओके, सो या यू 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 आर हैविंग अ वेरी, एज आई हैव सेड, ये डिस्टेंस के बाद एक जो फ्यूचर आने वाला है, दैट फ्यूचर इज मोर ब्राइटर देन योर पास्ट। पास्ट में आप दोनों इमेच्योर थे, यू बोथ आर ग्रोइंग इक्वली इन योर लाइफ, इन दिस रिलेशन, इन योर करियर। हर फेजेस में, हर वो जो भी अब हमारी लाइफ में जो भी फेजेस होते हैं, वो दोनों फेजेस आप लोग इक्वली पार कर रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू वेरी इक्वली। आपके साथ जो हो रहा है आपको रियलाइज होता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है उनके साथ भी होने वाला है, और उनके साथ जब होता रहता है आपको रियलाइज होता है कि ये जब हो रहा है तो कैसा महसूस होता है। सो यू बोथ आर मिरर टू ईच अदर, यू बोथ आर रिफ्लेक्शन टू ईच अदर। सो बहुत जल्दी ही आप लोगों के वो क्लीन कम्युनिकेशन होने वाली है। अभी के लिए बस थोड़ा सा आप लोग दोनों थोड़ा सा चुप चुप हो कि मतलब आई सो चुप तो हो ही नहीं, ऑलमोस्ट दिख ही रहा है। शायद आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है हर दिन देखते भी हो, अगर नहीं भी देख रहे हो तो एक दूसरे को फ़ोन में स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि वो मुझे स्टॉक कर रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो। सो ऑलरेडी एवरीथिंग इज हैपनिंग, ऑलरेडी कम्युनिकेशन इज देयर इन द एयर। ओके, बस मुंह से बोलना बस बाकी है, एंड it's coming very soon, it's coming very soon. So yeah, this was the reading for pile number 2. So do let me know in the comments that you have resonated. Also, if you want personal readings, you can contact me on my email id. I provided it in my description box. Also, you can contact me on Instagram. So see you in my next video. Till then, take care, bye bye, and thank you.